Good morning, student. As we discuss the chapter accounting equation, in today's lecture we do some illustration which comes in the exams in 1 marks or 3 marks. Illustration number 9. If the capital of a business is rupees 1 lakh and outside liability of rupees 60,000, calculate total asset of the business. I repeat, if capital of a business is rupees 1 lakh and outside liability is 60,000, then calculate total assets of the business. तो what accounting equation क्या होती है आपकी? Capital plus other liabilities, capital plus other liabilities is equal to assets. तो capital given in the question is 1 lakh, outside the other liabilities rupees 60,000, is equal to asset. So your total asset is 1,60,000. Illustration 10. Understand this question? If illustration number 10. If total asset of a business is rupees 2 lakh, net worth means capital. Net worth is rupees 1,50,000. Calculate creditors. क्या निकालना है अपन को? Creditors. तो your accounting equation is capital plus other liability. तो यहाँ पे other liability की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? Creditor, because credit is a part of other liability, is equal to assets. In this question, net worth is given. Net worth means capital. The capital is 1,50,000. Creditors अपन को निकालने हैं. And assets. Asset is total asset of the business is 2 lakh given in the question. ये जाके यहाँ पे माइनस होगा. Creditor is equal to 2 lakh minus 1,50,000. यहाँ पे जाके माइनस हो गया, तो your creditor will be 50,000 rupees. Illustration number 11. A commenced business on 1st April 2011 with a capital of rupees 5 lakh. On 31st March 2012, his assets were rupees 7 lakh 80 and liabilities rupees 70,000. Find out his closing capital and profit earned during the year. A commenced business on 1st April 2011 with a capital of rupees 5 lakh. At the end of the year, assets were rupees 7 lakh 80 and liabilities कितनी 70,000. क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग कैपिटल. तो इस क्वेश्चन में आपको एंड ऑफ द ईयर के असेट्स गिवन है और एंड ऑफ द ईयर की लायबिलिटीज गिवन है. क्वेश्चन में एंड इन दिस क्वेश्चन क्या मेंशन है? एंड ऑफ द ईयर के असेट्स एंड एंड ऑफ द ईयर की लायबिलिटी. अपन को क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, एंड ऑफ द ईयर में कितनी कैपिटल है वो अपन को फाइंड आउट करना है. तो अपन अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस closing other liabilities is equal to closing assets. सब कुछ क्लोजिंग का ले लिया अपन ने. अब क्वेश्चन में आपको एंड ऑफ द ईयर के असेट्स गिवन है कितने? 7 lakh 80. क्वेश्चंस में आपको एंड ऑफ द ईयर की लायबिलिटीज गिवन है, that is 70,000. और हमको we have to find out closing capital. यहाँ से निकाल लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, इधर प्लस है जाके माइनस होगा, तो योर क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 7 lakh 80 minus 70,000. योर क्लोजिंग कैपिटल इज 7 lakh 10,000. क्लोजिंग कैपिटल, राइट. अब आइए क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में? आपसे कह रहा था कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. अपन को प्रॉफिट भी निकालना है. तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपकी कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल 2011 को?
ऑन 1 अप्रैल 2011 आपकी जो कैपिटल है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, द बिगिनिंग ऑफ द ईयर योर कैपिटल इज रुपीज 5 लाख एंड एट द एंड ऑफ द ईयर योर कैपिटल इज 7 लाख 10,000। तो कैपिटल 5 लाख से 7 लाख 10,000 की हो गई, तो ये जो कैपिटल इंक्रीज हो रही है क्या है आपका प्रॉफिट है। तो आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, समझाया क्या समझाया। योर कैपिटल एट द बिगिनिंग इज 5 लाख एंड योर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 7 लाख 10,000। तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है। कैपिटल कब इंक्रीज होती है, जब उसमें अपन प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। Your closing capital is 7,10,000 and your opening capital is 5 lakh। 7,10,000 में से 5 lakh डिडक्ट करेंगे तो your profit is 2,10,000। Illustration number 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसके दो पार्ट है। ए पार्ट, सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ 7,50,000। क्वेश्चन के अंदर आपको 1 अप्रैल 2011 को आपकी कैपिटल गिवन है, how much, 7,50,000 and a loan of rupees 2 lakh is taken from Punjab National Bank। और स्टार्टिंग में इसने लोन भी लिया था from Punjab National Bank for rupees 2 lakh। On 31st March 2012 his assets were rupees 15 lakh। एंड ऑफ द ईयर में 31st March 2012 को उसके जो असेट्स थे, असेट्स कितने के थे एंड ऑफ द ईयर में, असेट्स थे आपके 15 लाख के। असेट्स कितने के थे, 15 लाख के। कह रहा है फाइंड आउट दिस कैपिटल ऑन 31st March 2012। अपन को उसकी कैपिटल निकालनी है 31st March 2012। इट मींस अपन को इसकी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को अपन इस तरह से लिखें, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग अदर लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स। एट द एंड ऑफ द ईयर योर एसेट इज 15 लाख एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में अपन ने 2 लाख रुपीस का लोन लिया था पंजाब नेशनल बैंक का। तो वी ऑलरेडी डिस्कस बैंक लोन इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो ये बिगिनिंग में तो एंड में भी होगी। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी क्लोजिंग अदर लायबिलिटी कितनी होगी, 2 लाख की लोन की। समझ आई बात। स्टार्टिंग में अपन ने पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख रुपीस का लोन लिया था और अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बैंक लोन इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो ये बिगिनिंग में तो एंड में भी होगी। तो यह क्लोजिंग अदर लायबिलिटी कितनी की होगी, 2 लाख की। एंड क्लोजिंग कैपिटल यह जगह लेस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 2 लाख, कितना हो गया आपका 13 लाख। अब ए पार्ट में आपसे और क्या कह रहा था, कैलकुलेट प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में योर कैपिटल इज 7,50,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर योर कैपिटल इज 13 लाख। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल
minus opening capital. Your closing capital is 13 lakh and your opening capital is 7 lakh 50. तो प्रॉफिट क्या हो गया आपका? The profit is 5 lakh 50,000. B part. समझ आ गया? प्रॉफिट पूछ रहा था तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में योर कैपिटल इज 7 lakh 50, एंड ऑफ द ईयर में योर कैपिटल इज 13 lakh. तो योर कैपिटल विल बी इंक्रीज, और कैपिटल कब इंक्रीज होती है? जब अपन उसमें अपन प्रॉफिट ऐड करते हैं. तो प्रॉफिट क्या हो गया? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल इज 13 lakh, ओपनिंग इज 7 lakh 50, तो प्रॉफिट इज 5 lakh 50,000. नाउ सब बी पार्ट. कह रहा है इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन the proprietor had introduced additional capital of rupees 1,25,000 and had withdrawn 40,000 for personal purpose, find out the profit. कह रहा है इसी इलस्ट्रेशन में अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है 1,25,000 की, अब 40,000 विथड्रॉ कर लिए पर्सनल पर्पस के लिए, तो कह रहा है फाइंड आउट द प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट होगा ये अपन को फाइंड आउट करना है. देखो हमारी जो ओपनिंग कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी? 7 lakh 50. एडिशनल कैपिटल है तो एडिशनल कैपिटल को यहाँ पे ऐड करेंगे. एडिशनल कैपिटल कितनी है? 1,25,000. फिर ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को कैपिटल में से क्या करते हैं? लेस कर देते हैं. ड्राइंग दे रखी है 40,000 की. और क्वेश्चन का बस से पूछा है प्रॉफिट कितना हुआ, तो जो अगर प्रॉफिट जो भी अमाउंट का प्रॉफिट है, सपोज कर प्रॉफिट x है, तो अब प्रॉफिट यहां पे ऐड होता है, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है. तो ये एडलेस करने के बाद आपके पास कौन सी कैपिटल आती है? क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है. और यही वाला इलस्ट्रेशन अभी चल रहा है. क्लोजिंग कैपिटल अपन ने निकाल दी थी, यहां पे कितने की है? 13 लाख की. समझ में आया? क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 7 lakh 50, फिर कहते हैं एडिशनल कैपिटल लगाई, और कैपिटल लगाई 1 lakh 25 की, तो इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 1 lakh 25 की. कह रहा है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इज 40,000, तो ड्राइंग्स को अपन कैपिटल में से लेस कर देते हैं. फिर क्वेश्चन में पूछा है कितना प्रॉफिट हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो ओपनिंग कैपिटल में ऐड होता है, तो अपन एज्यूम कर रहे हैं x अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है. तो ये क्या आ गई आपकी? ये सब एडजस्ट करके क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है. और यही इलस्ट्रेशन कंटिन्यू चल रहा था, तो क्लोजिंग कैपिटल यहां निकाल ली थी अपन ने 13 लाख की. अब इसको अपन इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं. कैसे? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल इज 7 lakh 50, एडिशनल कैपिटल इज 1 lakh 25 माइनस ड्राइंग इज 40,000, प्रॉफिट कितना है x का? क्लोजिंग कैपिटल इज 13 lakh. क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 13 lakh की. तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 13 lakh, इधर प्लस है जाके माइनस होगा 7 lakh 50, ये प्लस है जाके माइनस होगा 1 lakh 25,000, ये माइनस है जाके ऐड हो जाएगा कितना? 40,000. तो ये प्रॉफिट आपका निकल के आएगा 4 lakh. ये एडजस्ट करेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा 4,65,000. ओके. तो ये क्वेश्चन जो करें ये एग्जाम में 1 मार्क्स से 3 मार्क्स में आते हैं इस चैप्टर में से. ओके, थैंक यू.